So today's topic is equivalence relation, and importance of this is that the whole group theory will be based on this, because equivalence relation, using the equivalence relation, we can talk about the partition of a set, and of course equivalence relation uses the Cartesian product of two sets. So binary operation, or the operation we are going to define on a set, is also be a part of the Cartesian product. Okay. So, for example, let us let A and B. We have two non-empty set. Of course, if the sets are empty, then nothing to do. We need not to worry about that. Okay. So we are going to take the two sets which are non-empty. That is, they have some elements in them. Okay. So let A and B be two sets. Okay, and then set not necessarily they are containing only real number or something. They may contain any object. All right. So then the Cartesian product of A and B is defined by, in fact, it denoted and defined by A times B. We used to write like this, and then this is the collection of tuples from the set A and B. A, B, this kind of element it has, and where A belongs to capital A and B belongs to capital B. So for all A and B, small a and B belongs to capital A, capital B respectively. All right. So this is this A times B, that is a Cartesian product of A and B, will be having element of this form. Okay. All right. Fine. So for example, we can take, as you already know, suppose we are taking A, B, there are two elements, and then in another set, suppose B, there are elements small x, y. It is not necessary both sets should have the same number of elements, but they may have different number of elements also. All right. Any number of elements they may have. So A times B, you already know. Let us start. First element, A, X. That is a Cartesian product, that their places are fixed. All right. Sometimes they are called two tuples. So first element जो होगा वो A से होगा, second element B से होगा. This is a fixed. All right. So AX, and then we can write AY. Then we can take a B, and then BX, and then we have by. So in total we have 4 number of elements in A times B, and this indicates one thing, that in a Cartesian product, the number of elements, this is what we guess. All right, we are guessing the number of elements in A is 2, and number of elements in B is 2 also. So in their product there are elements 2 times 2. That is 4 elements in their Cartesian product. Similarly, in general, it can be proved that if there are elements in set A, suppose R elements, in set B there are S elements, then their product A times B will be having R times S, or what? Any idea? Can we generalize like this? Can we generalize like this? Anyone? Not yes, necessarily. Not necessarily, Yes, because there may be some elements which may be repeating. All right. So repetition we need to be remove. We need to remove. All right. अब यहाँ पे देखेंगे A में, A B में, सेट A में और सेट इसमें, इन दोनों में सेम एलिमेंट नहीं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है. बस ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इसमें एलिमेंट सेट की बात कर रहे हैं ना हम. इसमें सेट में अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट रिपीट भी हो सकते हैं.
so that need to be removed. So हम ऐसे generalize अभी नहीं कह सकते, हाँ वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, that we may see later, we may talk about later. Okay, सर मैं so समझा नहीं आपने, हेलो सर एक बार बता देते। मैं ये कह रहा हूँ कि based on certain example we cannot generalize certain results. All right, based on example हम ये नहीं कह सकते कि हम एक एग्जाम्पल देके कोई चीज प्रूफ नहीं करते हैं, समझ रहे हो आप? यस सर, गॉट इट। एग्जाम्पल इज नॉट ए प्रूफ, एग्जाम्पल नेवर ए प्रूफ. Example is used to contradict some statement. All right, so a statement which is which we may be thinking that this is a true, but it is not proved yet. Sometimes it is called, or usually it is called conjecture. तो कल हम लोगों ने देखा था लेमा किसे कहते हैं, फिर थ्योरम किसे कहते हैं, कोरोलरी किसे कहते हैं. तो एक और इसमें वर्ड है जिसको हम कंजक्चर कहते हैं. कंजक्चर, कंजक्चर एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो लगता तो है कि ट्रू है बट वो प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो उसको हम कंजक्चर कहते हैं. सो इन मैथमेटिक्स $1 बिलियन प्रॉब्लम एक आप जानते हो रीमान्स हाइपोथेसिस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में है, ठीक है. सो दैट थ्योरम, दैट हाइपोथेसिस नॉट प्रूव्ड येट, सो दैट इज आल्सो ए कंजक्चर, समथिंग लाइक. ओके, सो ये तो हो गया. यहाँ से हम लोगों ने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है. एंड देन ओके, लेटेस्ट एक एग्जांपल भी हम लोगों ने देख लिया. अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, ठीक है ना. हालांकि हम बाइनरी प्रोडक्ट यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन को करके तभी हम उसी पे डिफाइन करेंगे, ठीक है. सो लेट अस सी व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, ठीक ना. जस्ट आई विल उसको मैं रिकैप कर दूंगा, आप लोगों को रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना. सो लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, be a non-empty set, then अब इस इक्विवेलेंस रिलेशन के डिफाइन करने से पहले वी नीड टू डिफाइन ए रिलेशन. व्हाट इज ए रिलेशन, ठीक है ना. देन एनी सबसेट, any subset of A cross A, that is Cartesian product A का A से ही ले रहे हैं हम. any subset of this is called a relation on A. all right, so यहाँ पे जो वर्ड है ये आप ये जितने भी एडजेक्टिव होते हैं ना उस पे ध्यान देना में जरूरी होता है. तो एक ये हो गया और एक ये नया वर्ड हमारे पास आ रहा है जो हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. तो सबसेट होना चाहिए, किसका सबसेट होना चाहिए? ए क्रॉस ए का, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल लेट अस टेक ए contains element like 1 2 3 फॉर एग्जांपल, ठीक है. सो इसमें बेसिकली ए क्रॉस ए, इसमें एलिमेंट्स जो होने जा रहे हैं आपके 1 1 हो गया, ठीक है, और 1 2 हो गया, 1 1 1 2 1 3, ठीक. एंड देन अदर बताइए आप, 1 को लिया, 1 का सारे से प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है ना. एंड देन नेक्स्ट 2 3 2 1 2 1 2 2, ऑल राइट. और फिर और इसमें एलिमेंट कौन सा? 3 1 एंड देन 3 2 and then 3 3. okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9. so इसमें कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं? 9 एलिमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है ना. तो यहाँ भी वो चीज आ रही है कि जितने एलिमेंट्स हैं उसी का अगर हम 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 into 3 टाइप का, तो इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हो रहे हैं. so these are the examples. okay, so
इसका कोई भी सबसेट आप लीजिए, सपोज वी आर टेकिंग ए सबसेट R1 ऑफ दिस, इसमें से कोई सबसेट लीजिए, हमने लिया 1 1 रख दिया, यहाँ पे 1 3 रख दिया, ठीक है ना, और 3 3 रख दिया. So this is a relation, any subset of this one, any subset of this one. And then we have another subset. Suppose we are taking 2 3, and then we are taking 2 2. All right, this is also a relation. And then we are taking, suppose R3, we are taking 3 2. Let us take only single element here. So all these are the relations. All right, these are the relations on set A. All right. So even ये खुद A क्रॉस A, ये खुद, क्योंकि ये खुद का सबसेट होता है तो ये खुद भी एक रिलेशन होगा सेट A पे. फाइन. सो रिलेशन क्लियर है. अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है. सो इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हम डिफाइन करेंगे. पहले नोटेशन में हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि if A B, suppose there are two elements, A B belongs to some relation, R is some relation. All right, some relation. Then we write, ये नोटेशन की बात मैं कर रहा हूँ, A is related with B. All right, so ये यूजुअल नोटेशन था जो हम पहले से पढ़ते आए. ठीक है ना. So let us see the definition of equivalence relation. Right. A subset of A times A is said to be an equivalence relation on A if first, so there are so many properties. तो पहला क्या होता है? reflexive relation. A belongs to R for or A belongs to the set A. ठीक है. या फिर हम इसको दूसरे वर्ड में कहते हैं, मैं यहीं पे साथ ही साथ लिखता जा रहा हूँ. ठीक है ना. A related with A for all A belongs to A. For all A belongs to A. All right. अब इस यहाँ पे जो A लिखा है और पीछे यहाँ पे जो मैंने एक सेट लिया था, इसमें कोई रिलेशन नहीं है. This was an example. All right. So ये कोई arbitrary एलिमेंट की बात कर रहे हैं और इसको हम नाम देते हैं, कहते हैं रिफ्लेक्सिव. Reflexive. And then second, AB belongs to R. That is, when we say that AB belongs to R, that is they are related. ठीक है ना. AB belongs to R. So this should imply BA belongs to R. All right. So it means हम दूसरे वर्ड्स में हम इसको कैसे लिखेंगे, सेम चीज को हम A related with B should imply B related with A. So we say that this is symmetric property. And then third one is called transitive property. If AB belongs to R, that is A related with B and B related with A, B related with C, B related with C, then this should imply A related with C belongs to R. So here in this notation, A related with B and B related with C, this would imply A related with C. So this is called transitive. This is called transitive. So there are three properties.
if the subset, the chosen subset, all right, and particular मैं इसको R यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो R relation की, the chosen subset of A times A is said to be an equivalence relation on set A if it satisfies three properties. First is called reflexive, second is called symmetry, and third is called transitive. अब इसको हम एक बार देखते हैं कि इसका मतलब है क्या। हर एक चीज जो भी इसमें, मतलब मैथमेटिक्स इज ए वेरी प्योर लैंग्वेज। अगर उसमें आप कोई चीज लिख दे रहे हैं, एक चीज कोई कर दे रहे हैं, मतलब प्रूफ कर दे रहे हैं, तो इट इज प्रूव्ड, ऑलवेज प्रूव्ड। अगर कोई प्रूफ नहीं हुआ या डिस्प्रूव हो गया तो इट इज ऑलवेज डिस्प्रूव्ड, उसमें कंफ्यूजन नहीं रहता है। और मतलब बहुत प्रेसाइज लैंग्वेज है। जैसे भाषा में हम पढ़ते हैं, भाषा करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एंड अदर लैंग्वेज, जर्मन, फ्रेंच, ये सारी जो भी लैंग्वेजेस हैं, वैसे ही ये भी मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज ही है ना, इसकी भी एक लैंग्वेज है। तो अब यहाँ पे देखिए, एक इस चीज को हम करते हैं, ये ठीक। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये इंप्लाई ए रिलेटेड विद बी शुड इंप्लाई दिस वन। सो इसको आप ऐसे समझ लो, ठीक। इफ ए रिलेटेड विद बी, ठीक है ना, ये इंप्लाई करते बी रिलेटेड विद ए, तो फिर उस केस में सिमेट्रिक होगा वो, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है इफ ए रिलेटेड विद बी एंड बी रिलेटेड विद सी, दिस इंप्लाइज, यहाँ पे भी इंप्लाइज। यहाँ पे कह रहा है फॉर ऑल ए, ठीक है ना। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना है, देखिए हर एक रिलेशन तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा नहीं, ठीक है ना। एवरी रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो हो सकता है कि कुछ केवल रिफ्लेक्सिव हो, कुछ सिमेट्रिक हो, कुछ ट्रांजिटिव हो, कुछ इसमें से दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हो, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कर रहे हो या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कर रहे हो, या ट्रांजिटिविटी और रिफ्लेक्सिविटी हो, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे ये चीज जरूरी है, अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो, ठीक, रिफ्लेक्सिव होना है तो ए शुड रिलेटेड विद ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक। तो अब जैसे यहाँ पे हमने ये सारे सेट्स रिलेशंस बनाए थे R1, R2, R3, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? फर्स्ट वाला R1, इसके लिए क्या होना पड़ेगा? देखिए, हाँ, इसके लिए क्या होना पड़ेगा, देखिए यहाँ से कि ए टाइप के जितने भी एलिमेंट है ना, सारे के सारे उस R में आ रहे हो और सारे ए के लिए आ रहे हो, ठीक। देखिए इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसमें ए में 1 2 3 है, ठीक। 1 1 तो आ रहा है, इसका इसमें हर एक एलिमेंट इस टाइप के आने चाहिए। बिलोंग्स टू, शुड बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक। तो ए को इस फील्ड में रन कराओ, दौड़ाओ इसको, ए की वैल्यू 1 लिया तो 1 1 तो आ गया, लेकिन ए जैसे ही 2 वैल्यू लेगा, 2 भी तो लेना होगा इसको, तो 2 2 तो नहीं आ रहा है इसमें, हाँ 3 3 आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, पक्का, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव होने के लिए उस एलिमेंट का होना जरूरी होता है, सारे एलिमेंट का। तो अब जैसे मैं सेट ले रहा हूँ, उसी सेट को ले रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज ले रहा हूँ 1 2 एंड 3 सेम सेट, और ए क्रॉस ए आप जान रहे हो क्या होगा, ठीक है ना। इसमें से मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ जो रिफ्लेक्सिव हो, ठीक, रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव, उसको मैं R1 नाम दे रहा हूँ, ठीक। लेट अस सी कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए, कम से कम 1 1 2 2 एंड 3 3। गॉट पॉइंट? ओके, हेलो, Yes, sir. You are Hello. audible. yes, Hello. yes, R1 should have these at least these। अब क्या क्वेश्चन ये है कि क्या इसके अलावा भी एलिमेंट इसमें रखे जा सकते हैं? यस सर। हाँ रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, अभी इसके मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट रख दो, वहां पे 1 2 आ रहा था, इसको भी रख दो, और 2 3 आ रहा था, इसको भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रहेगा ही रहेगा, पक्का। हाँ, इसके ये जरूरी नहीं है कि ये सिमेट्रिक हो या ना हो, या ट्रांजिटिविटी ना हो, क्योंकि हम उसकी चेक नहीं कर रहे। रिफ्लेक्सिव होने की एक प्रोमिनेंट कंडीशन ये है कि ये सारे
आ रहे होने चाहिए, यानी 1 1 2 2 और 3 3 होने चाहिए इसमें, ठीक है ना। अब इसी चीज को हम अगर ऐसे देखें, देखो एक मैट्रिक्स जैसा हम बना लें, ठीक है ना, इसको ऐसे बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं और 3 लिखते हैं, ठीक ना। सो इसके यहाँ पे एलिमेंट्स देखते हैं हम, ये 1 1 हो गया, ठीक है ना। लेफ्ट से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, 1 2 हो गया, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया, 1 3 हो गया, फाइन। यहाँ पे क्या हो गया, 2 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 2 2, फाइन। यहाँ पे 2 3। आप ये उठाइए, पहले प्लेस पे ये रखिए, दूसरी प्लेस पे यहाँ से रखिए एलिमेंट, ठीक ना। यहाँ पे 3 1, देन 3 2 and then 3 3, all right। so रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है बेटा, ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ना, ये डायगोनल, all right, ये डायगोनल, ये तो होने जरूरी है। इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें से कोई एलिमेंट मिसिंग है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, पक्का, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अच्छा, अब हम एक रिलेशन R2 बनाते हैं। ये R2 ऐसा रिलेशन बनाते हैं जो सिमेट्रिक हो। बताइए इसमें कौन से एलिमेंट रखे हैं हम R2 में, केवल सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक हो, बाकी और वो अगर रिफ्लेक्सिव होता है तो कोई बात नहीं, नहीं होता तो भी कोई बात नहीं। बताइए। 1 2 2 जी, 1 2 का एक डबलेट और फिर 2 1 का एक डबलेट। टैबलेट, कपल, डबलेट सर, डबलेट। अच्छा टपलेट कह रहे हो, टैबलेट्स ना। अच्छा 1 2 लिख दें और फिर 2 1 2 यस, वेरी 1 2 2 1 1 3 कोई भी कंक्रीट ले 1 लेंगे तो हो 3 जाए। इतना ही अगर रखे तो क्या दिक्कत है कोई? नो सर, ठीक है। पक्का? No, sir, no problem. किसी को डाउट इसमें? मैं कह रहा हूँ केवल यही दो एलिमेंट्स रखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? नो अच्छा सर। No, sir. ठीक, अब एक चीज और इसमें रख लेते हैं, जैसे 2 3 में रख दूं। अब बताइए, अब ये अभी दिक्कत सिमेट्रिक हो रहा क्या? नॉट सिमेट्रिक, 3 भी देखिए आना तो सर 3 2 भी होना चाहिए। यस, सो व्हेनेवर वो कह रहा है ना कि जो डेफिनेशन में कह रहा है, व्हेनेवर ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस शुड इंप्लाई दैट बी ए शुड आल्सो बी मेंबर ऑफ आर, ऑलराइट। व्हेनेवर दिस होल्ड्स, दिस शुड इंप्लाई दिस वन, समझ रहे हैं ना। या फिर ये कहें कि ये अकेले रहेगा ही नहीं, जब ये रहेगा ना तो पेयर में आएगा, इसके उनके दोनों के कोऑर्डिनेट्स चेंज करके, ठीक है ना, पक्का। सो ये तो नहीं बनेगा, हाँ इसको हम बना सकते हैं, और आगे इसको बनाने के लिए हमें एक एलिमेंट और रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एलिमेंट, आप कह रहे तो 3 2 रख दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, अब इस टेबल से हम रिलेट करें, टेबल से जब हम रिलेट करेंगे तो आपने एक तो इसको रखाया था, आपने इसको एक ये रखाया था, है ना। अब इसी के डायगोनल वाइज अपोजिट देखेंगे तो ये दूसरा एलिमेंट है ना, पक्का। आपने एक 2 3 को रखा है और ये रख दिया, ये एलिमेंट्स ये आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें में से अगर डायगोनल के ऊपर या नीचे का, ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल है ना, ये मेन डायगोनल है आपका, ये मेन डायगोनल है। डायगोनल के नीचे या ऊपर का कोई एक एलिमेंट आ रहा है ना, तो अगर नीचे का आ रहा है तो ऊपर का भी आना चाहिए। इफ an element from downside, okay, lower side of the diagonal is becoming a member of this set, this relation, then it is necessary that the opposite element, that is the element which is lying just opposite and above the diagonal should also be a member of। तो जैसे ही 1 2 हुआ तो 2 1 भी आना चाहिए, 3 2 हुआ तो 2 3 भी आना चाहिए। अब इसी में अगर 3 1 लिख देंगे ना तो 1 3 को रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक इट सिमेट्रिक, ऑलराइट। सो चलते हैं हम R3, इसको हम ट्रांजिटिव करते हैं। बताइए कोई सेट बनाइए आप। सर 1 2
1 2 लिख दिया और हो गया सर। 2 3 2 3 2 3 लिख दिया। 2 अब 3 and 1 1 3 1 3 1 3 very good. All right. So 1 2 2 3 1 is related with 2 and 2 is related with 3. अगर इसको ट्रांजिटिव होना है तो 1 रिलेटेड विथ 3 होना पड़ेगा, इसमें आना पड़ेगा, ठीक है ना। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। अब इसमें और आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कोई ऐसा एक रिलेशन बनाओ जो दोनों में से दो हो, एक तीसरा ना हो, जैसे रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव ना जाए, ट्रांजिटिव हो जाए तो वो दोनों ना हो, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव ना हो, ठीक है ना। उस एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक लिया, जैसे एक एग्जांपल है, सपोज 5 6 7 है। सो एक रिलेशन इसमें डिफाइन किया हुआ है 5 6 और 6 7, ये उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिया हुआ है, ठीक है ना, ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। सो रिलेशन ऑल आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट इसमें आने चाहिए था ना, 5 5 होना चाहिए था, 5 5 होना चाहिए था, 6 6 होना चाहिए था और 7 7 होना चाहिए। तो आर में है नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं पक्का। ऑलराइट, सिमेट्रिक 5 6 है, 6 5 भी है। अब ये कोई आपसे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेगा कि सर 6 7 भी तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आता है, उसमें नहीं है, क्योंकि हम कंसीडर ही नहीं कर रहे वो रिलेशन, है ना। तो रिलेशन में उसको हम कंसीडर हम देखेंगे तो इसी में इसी के एलिमेंट देखेंगे, तो आर जो है सिमेट्रिक है, ठीक है ना। सो ओके, सो व्हाट अबाउट ट्रांजिटिविटी? 5 6 और 6 5 ये दोनों मेंबर, आप 5 6 और 6 5 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 5 लिख सकते हैं और 5 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप? तो दोनों तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे तो एक तरीके से कर दिया कि 5 6 और 6, तो 5 5 यहाँ के मेंबर नहीं है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो 6 रिलेटेड विद 5 5 रिलेटेड विद 6 और बट 6 इज नॉट रिलेटेड विद 6 बिकॉज यहाँ पे वो एलिमेंट नहीं है। अच्छा, इसी आर को अगर हम ट्रांजिटिव बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? 5 6 से रख दिया है ना, 6 5 रख दिया, और क्या एलिमेंट रखे? 5 5 रख दे। सर 5 5 और सर 6 6 भी। हाँ, ये चीज जरूरी है, क्योंकि एक ही जगह देखेंगे ना। मान लीजिए फर्स्ट साइट में आपने ये देख लिया, फिर आपको ऐसे भी लिख करके देखना है, ठीक है ना। तो अब ये बनेगा, अब ये बन जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, सॉरी ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो क्या ट्रांजिटिव तो हो गया, ठीक है ना। क्या सिमेट्रिक है? यस सर, सिमेट्रिक भी हो गया है ना, वेरी गुड। ये ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। व्हाट अबाउट रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव में 7 7 छूट रहा है, नहीं है, नहीं है ना। तो an addition of another element 7 7 will make it reflexive। लेकिन जैसे ही आपने एक एलिमेंट और ऐड किया, तैसे ही फिर आपको इन दोनों के पास आना पड़ेगा चेक करने, ये ट्रांजिटिव रहा या ट्रांजिटिव नहीं रहा, सिमेट्रिक रहा या सिमेट्रिक नहीं रहा, ठीक है ना। तो अब बताओ, क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? अभी यस सर है, अभी भी है ना, क्योंकि इस 7 7 में इसमें 5 6 6 5 और 6 में से कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ और एलिमेंट होता ना, फिर इसमें में से कोई, तब हमें स्ट्रेस देने की जरूरत थी। और सिमेट्रिक 7 7 है तो उसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो कोई सेम ही आएगा, तो भी होगा, है ना। तो अब ये जो बना ना सेट, ये जो सेट बना, सपोज आई से नेम इट आर स्टार, ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, और the kind of relation it has is an equivalence relation that fine। so ये चीज है। चले आगे। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल रखा था, मे बी ये होगा, ये एक एग्जांपल है इसमें। कंसीडर ए सेट, कंसीडर ए रिलेशन ऑन आर, सॉरी आर ऑन आर, ये सेट ऑफ रियल नंबर है। सो डिफाइंड इसको कैसे किया है, इसमें वो सारे टपल्स हैं रियल नंबर्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट इसमें लिया हुआ है, सच दैट a is less than b, फाइन। सो फॉर एनी a belongs to r, a belongs to the set of real number, ठीक ना। अब इसमें a
एक ए बिलोंग कर ही नहीं रहा होगा, है ना, क्योंकि इसमें कैसे एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट होंगे जो ए पहला जो पहली प्लेस पे जो एलिमेंट है that is less than that the second place element at second place. Fine. तो इसमें मान लीजिए फर्स्ट प्लेस पे 5 है तो दूसरे पे 6 है, ये आ सकता है, लेकिन कभी 5 5 आएगा, कभी 1 1 आएगा आर का पार्ट, ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि 5 स्ट्रिक्टली लेस देन होगा नहीं, ठीक। सो ये जो है व्हाट इज कॉल्ड ये रिफ्लेक्सिव आपका नहीं होगा, ठीक है ना, इट्स ऑल्सो नॉट रिफ्लेक्सिव। सो लेट अस गो फाइन। तो और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे सॉरी ये डेफिनेशन हम लोगों ने देखा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन का, ठीक है ना, एंड देन if R is an equivalence relation on A, all right, equivalence relation on A, then दिस रिलेशन, ये एक रिमार्क लिख दे रहा हूँ, इसका मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, आप लोगों ने पहले शायद छोटी क्लास में किया, दिस रिलेशन पार्टीशन द सेट ए, ठीक ना। सो एक नोट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो कोई भी रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, और एक सेट पे ऐसा नहीं है कि एक ही इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, कई सारे इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। सो वो कुछ एग्जांपल्स इसमें हम वो कर देते हैं। एक तो ये हो गया कि फॉर एग्जांपल द रिलेशन A related with B relation on set of integer, that is set of integers, set of all integers defined by कैसे रिलेशन डिफाइन करेंगे, A इज रिलेटेड विद B, अगर A दो रिलेटेड है तो हम इस तरीके से लें, इफ एंड ओनली इफ A minus B is an even integer, even integer, ठीक है ना। सो ऑफ कोर्स इसमें हम फर्स्ट अगर वेरीफाई करेंगे तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू द सेट Z, A माइनस A इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, एंड इक्वल्स टू 0 इज इवन, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट A रिलेटेड विद A फॉर ऑल A, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। देन सेकंड सिमेट्री, for any A B belongs to Z, set of all integers में, so उसमें होता है ना let A B related है, ठीक है ना, so let A related with B, so this implies that, ये क्या imply करेगा कि A minus B क्या है, even है, ठीक है ना। so then B minus A, let us see, अगर B minus A भी even हो, so B minus A is what, minus times A minus B, यही तो हुआ ना। तो अगर कोई नंबर इवन है तो इसका नेगेटिव भी क्या होगा, is also even, so this implies that B is related with A, all right। then third, transitivity, so for any A B C belongs to the set of integers, all right, so we need to consider let A related with B and B related with C, all right, then A minus B क्या होगा, even, and B minus C is also even, all right, so A minus C को हम कैसे लिख सकते हैं, A minus B plus B minus C, फाइन, ठीक है ना। सो ये भी इवन है और ये भी इवन है, दोनों का इवन का सम क्या होगा, इवन होगा, है ना, तो इवन, so this implies that A related with C,
So this relation, when A is related with B, if and only if A minus B is an even integer, is an equivalence relation on the set of integers. All right. So let us see another example. ये example integer modulo n का है, ठीक है, और इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे जब हम ग्रुप में एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो, ठीक है ना. So let n be a fixed positive integer and AB belongs to the set of all integers. Then the relation A related with B, then the relation then the relation like this, defined on set of integer s by, हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं. अब इस रिलेशन को समटाइम्स ऐसे लिखते हैं या फिर इसको इस रिलेशन को समटाइम्स हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना. सुना है कभी आपने नाम कॉन्ग्रुएंस रिलेशन? Hello. Yes, sir. Okay, then all right. Yes. So we used to write like this, three parallel lines. Okay. So we write it as वहाँ पे जो हम टिल्डे ऐसे करके लिख देते थे ना, यहाँ पे पर्टिकुलर नोटेशन ही दे दिया गया है, 3 पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना. So A is related with B, ठीक है ना. A हम ऐसे लिखेंगे A modulo B, A modulo B, A congruence to B modulo n, A congruence to, इसको हम पढ़ते हैं A congruence to B modulo n if and only if A divides. अब ये वर्टिकल लाइन में लिख रहा हूँ, अब ऐसे ये लिखना अलग बात है, समझ रहे हो, A by B हो जाएगा ये, और जब मैं ऐसे लिखूं A और वर्टिकल लाइन लिखूं, इसका मतलब A divides B. ये आपका A divides B का मतलब ये है कि B जो है इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, A से डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड्स B का मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर इज 0. यू गॉट माय पॉइंट? हेलो. Yes, sir. ठीक है, तो फैक्टर हो जाएगा उसका. हाँ, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको we read it as A is congruence to B modulo n. ठीक, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे और ये हो जाएगा if and only if, दोबारा से लिखते हैं, A divides B. When we say A divides B, it means that A completely divides B. That is, remainder is 0. All right. So then the relation is an equivalence relation on set. ठीक है. So इसका प्रूफ भी बहुत इजी है, चाहे तो कर सकते हैं. पहला अगर हम प्रूफ की बात करें इसमें, तो फर्स्ट पॉइंट जो बनेगा, ठीक है, वो ये होगा कि आपका A से रिलेटेड है कि नहीं, ठीक है ना. सो हियर A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडुलो n. क्यों है? बिकॉज A माइनस A को हमेशा n डिवाइड करेगा. ये क्या हो गया, 0 हो गया ना, तो कोई भी इंटीजर उठाइए उससे डिवाइड कर देगा. n हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, तो 0 को तो हर एक इंटीजर डिवाइड करेगा, ठीक है ना. तो A is congruent to B module A is congruent to itself. Then second, अब इसमें एज्यूम करना पड़ेगा कि let A is congruent to B modulo n. All right. So ये imply करेगा कि B is congruent to A modulo. अगर A congruent to B modulo n हुआ, तो this would imply B is also congruent to modulo n. ठीक है ना, B is congruent to A modulo n. ठीक है ना.
सो ये हो गया, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? A minus B is divisible by n. देखिए जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे यहाँ पे, आपको मतलब हमें यहाँ पे पढ़ने का तरीका देखना है। व्हाटएवर द स्टेटमेंट इज देयर, उसका हम इम्प्लीकेशंस देखेंगे, इसके क्या मतलब हैं, इससे क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये हमने लिखा तो बाय डेफिनेशन हम क्या समझ जाएंगे, ये तो तभी होगा जब ए बी को डिवाइड कर रहा होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? Sir, इसको n ऐसे नहीं, divides A minus B. n so divides a minus b, ये लिखना था हमें। if and only if n divides a minus b, ये चीज होनी चाहिए थी। ओके, सो फ्लो में कभी मिस हो सकता है, तो आप लोग प्लीज ध्यान दिया कीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू। सो इट मीन्स दैट n should divides a minus b, ऑल राइट। अगर n a माइनस b को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, a माइनस b इक्वल टू सम k टाइम्स n हो गया, पक्का? और सम Yes, sir. k belongs to the set of integers, all right? कोई k ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? तो यहीं से हम दिस इंप्लाइज दैट b माइनस a को कैसे लिख सकते हैं? अगर k एग्जिस्ट कर गया तो माइनस k भी तो एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना? अगर k कोई इंटीजर है तो माइनस k भी कोई इंटीजर होगा, तो b माइनस a इक्वल्स टू माइनस k टाइम्स n हो गया। इसका मतलब क्या है, n डिवाइड कर रहा है b माइनस a को, है ना? सो दिस इंप्लाइज दैट n डिवाइड्स b माइनस a, और ये इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब बोथ साइड्स में इम्प्लीकेशन होगा। एक इसका मतलब ये हो गया कि b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो, ठीक, ये चीज हो गई। एंड देन वी सी द थर्ड वन। The third one, so we assume that let A congruence to B modulo n and B is congruence to C modulo n. So then by definition of congruence relation, n should divide A minus B and n should also divide B minus C, ठीक है ना? And then this implies that n a minus b को डिवाइड कर रहा है, तो a minus b, all right, K1. so some k1 times 10 and b minus c equals to some k2 times n for some k1 k2 belong to the set of integers। यहाँ तक बात पक्की है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो अब हमें सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दिखाना है, तो इसका मतलब क्या है, हमें कुछ ऐसा दिखाना होगा कि a माइनस सी ये n से डिवाइड हो जा रहा है, पक्का? ठीक, यानी कुछ हमें ऐसा मिल जाए कि a माइनस सी इक्वल टू सम k प्राइम, ये भी कोई इंटीजर है, टाइम्स n हो जाए, है ना? ठीक है, तो इन दोनों का यूज करके हम दोनों को साइड बाय साइड ऐड कर लें। सो a माइनस सी को कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ऑल राइट। a माइनस बी कितने के इक्वल है, b माइनस से, ये हो गया k1 n प्लस k2 n, दिस इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2 टाइम्स n, ऑल राइट। अब जब k1 k2 इंटीजर्स थे, दोनों का सम भी एक इंटीजर होगा, पक्का? So this implies that a minus c is equal to some k dash times n, where k dash is equals to k1 plus k2, all right? And this belongs to the set of integers, because sum of two integers again an integer. So this implies that n so divides a minus c. So this implies that a is congruence to c. So ये जो congruent modulo relation है set of integers पे, ये एक equivalence relation बनाता है, Equivalence relation. ठीक है? अब जब इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा, तो मैंने अभी रिजल्ट लिखा था विदाउट प्रूफ कि कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन किसी सेट पे क्या करता है, उस सेट का पार्टीशन करता है, ठीक है ना? तो हम देखेंगे, अच्छा, और ये n कोई हमारा नेचुरल नंबर है, और ये हम कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, इसको 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर भी फील लाइक, ठीक है ना?
तो इसमें से कोई सा भी नंबर हम चूज कर सकते हैं और फिर हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये उसको पार्टीशन कर रहा है कि नहीं। सो आज की क्लास यहीं पे हम लोग करते हैं फिनिश। अच्छा, आप लोगों ने इसके पहले वो किया होगा कि क्लास निकालना, है ना, कि इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, समथिंग लाइक दिस। यस सर, सेमेस्टर 1 में किया था। सेमेस्टर 1 में किया था ना, तो आप इसको अब करना। इसमें अब एक एग्जांपल है, तो आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अब कल से ना मैं सीधे बाइनरी ऑपरेशन पे आऊँगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने और इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ लिया है, और इसमें एक एग्जांपल भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। फिर हम कल देखेंगे कि क्या बाइनरी ऑपरेशन है, और फिर हम ग्रुप की डेफिनेशन पे सीधे आएंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये पार्टीशन करता है पूरे उसको। तो इनफैक्ट एक डेफिनेशन और मैं लिख करके फिर उसको कर देता हूँ, ठीक है ना। इफ tilde is an equivalence relation, ER मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, on a non-empty set A, then the set suppose S उन सभी x के एक A एलिमेंट का कलेक्शन such that x is related with A is called equivalence class of A belongs to A। इनफैक्ट इसमें जो नोटेशन है, हम S ना लिख करके जो आप पहले से करते हैं, इसको हम या तो ऐसे लिखते हैं, A इस तरीके से लिखते हैं, या फिर CL ऑफ A लिखते हैं, ठीक है ना। ये दोनों नोटेशंस हैं इसके लिए, ठीक है ना। सो अब इसी में एग्जांपल एक जैसे हम बात करें तो कंसीडर द रिलेशन on set of integer defined by, कैसा रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, A is congruent to B modulo 5, ठीक ना। सो ये कैसा रिलेशन, इफ एंड ओनली इफ 5 डिवाइड्स A माइनस B, तो हम यहाँ पे n की जगह 5 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये is an equivalence relation, is an equivalence relation, ठीक है। सो अब इसमें जीरो की क्लास हम देख सकते हैं। हम यहाँ पे जो एलिमेंट किसकी क्लास ले रहे हैं, ए, जिस सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड है। तो जीरो भी इंटीजर्स में है, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, सबकी इक्विवेलेंस क्लास हम देख सकते हैं। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा, वो सारे एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर्स के सच दैट completely divisible in the types 5 and यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिख दिया था, ये जो होगा आपका रिलेटेड विद ए होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें कौन से आएंगे जो x से रिलेटेड है, ठीक है ना, एक ही क्लास में, ठीक है ना, वो सारे, यानी a रिलेटेड x से कहिए, तो इससे जो रिलेटेड है वो एलिमेंट्स आने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। सो अब जीरो में क्या हो जाएगा, तो इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे एलिमेंट जेड के आ जाएंगे जो रिलेटेड होंगे किससे, जीरो से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना, वो जीरो से रिलेटेड होंगे। तो अब ये रिलेशन एक्चुअली में डिफाइन कैसे है, 5 जिनको डिवाइड कर रहा हो, मतलब इनके डिफरेंस को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है ना। सो अब इसमें x रिलेटेड विद 0, ये इफ एंड ओनली इफ x माइनस 0 शुड डिवाइड 5, यही तो है, ठीक है ना। ऑल राइट, x इज डिविजिबल बाई 5, यही तो आएगा। तो वो एलिमेंट आएंगे, वो x आएगा जो 5 से डिवाइड हो रहा होगा, है ना, वो एलिमेंट आएगा जो 5 से डिवाइड हो रहा होगा। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, सारे के सारे आपके 5 के मल्टीपल आ जाएंगे, है ना। तो ये आपका 0 भी हो जाएगा, प्लस माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 10 हो जाएगा, ऐसे करके ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, ठीक। बाकी आप 1 की क्लास देखना क्या होता है, आपने किया होगा, फिर 2 की क्लास देखना क्या होता है, ठीक है।
फिर आप 3 की क्लास देखना, 4 की क्लास देखना, और फिर 5 की क्लास जब देखोगे ना, 5 की क्लास देखोगे तो ये कंप्लीटली फिर 0 की क्लास के बराबर होगा। फिर 10 की क्लास भी इसी के बराबर होने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें से जितने भी एलिमेंट आएंगे ना, सबकी एक एक क्लास बनेगी, और वो उस एलिमेंट की क्लास इसी की क्लास के बराबर होगी, यानी 0 की क्लास के ही बराबर होगा, ठीक है। और हर एक क्लास, चाहे 1 की क्लास लो, 2 की क्लास लो, 3 की, 4 की क्लास लो, इसमें आगे हम देखेंगे तो एलिमेंट्स जो है हमें कॉमन नहीं मिलेंगे, अलग अलग ही मिलेंगे। इन सबका यूनियन लेंगे ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन सबकी क्लासेस का लेंगे तो हमें पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपने से आप करिएगा, इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। कल की क्लास 0 to 4 में ही मिल जाएगा इंटीजर सर, उसके बाद तो फिर रिपीट करेगा। हाँ, 0 से 4 तक आएगा, 5 में जैसे जाएंगे ना फिर वो 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 0 की क्लास के। और अगर 10 की क्लास निकालोगे तो भी वो 0 की क्लास और 5 की क्लास के इक्वल होगा, सेम होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में।